First is baking soda. Yes, first is baking soda. So, what is water of crystalline? Tell me, what is water of crystalline? Okay, so water of crystalline is that salts that are going to have some water molecule or water content, जिसमें कुछ water molecules या water content होते हैं, उसको हम लोग water of crystalline बोलते हैं. जैसे copper, this is blue vitriol, that is called the copper sulfate, CuSO4 and dot 5H2O. ये जो लगा हुआ होता है बाद में, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन. बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, so it does not have the water of crystalline. Washing soda is Na2CO3.10H2O, and gypsum is calcium sulfate dot 2H2O. So only the baking soda does not contain the water of crystalline, other is going to have the water of crystalline. So the correct option would be B. Do the question number 2. Here, under what conditions you have to tell the answer directly. So we have to tell the angle. Yes, you have to tell me the angle. Okay. Under what conditions the arrangement of two plane mirror, the incident ray and the reflected ray will be always parallel to each other whenever the angle of incidence is? Is it 90 degree? Yes, it is 90 degree. When the two plane mirrors are at 90 degree, so whatever the angle of incidence is, it will be always parallel to the, it will goes parallel to the this one. So this one is 90 degree. That the two plane mirror should be placed at an angle of 90 degree. Do question number 3. Sir, I think it's A. It's actually C, B part. Transpiration, photosynthesis and respirations. Okay. The stomata is the stomatal opening है, ये हर चीज में participate करती है. Transpiration means removal of waste or extra water from the plant. Photosynthesis and respirations. Plants also respires. Okay. So exchange of respiratory gases, the photosynthetic gases and the excess water
is done by through this opening called stomata. Got it? Got it? Yes, sir. Let's move further. So question number 4th. Done? No, sir. Once again. No, sir. इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई. इसमें मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ यहाँ पे कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है इसमें एक ही जगह से मेजर हो रहा है. हम लोग जो फोकल लेंथ वगैरह मेजर करते हैं वो लेंस से मेजर करते हैं. सपोज कीजिए कि यहाँ पर पॉइंट 0 है. सो पोजीशन ऑफ कैंडल जो है यहाँ से 26 सेंटीमीटर पर है. लेंस जो प्लेस किया गया है वो यहाँ से 50 पर है 0 से. और पोजीशन ऑफ स्क्रीन जो स्क्रीन है वो यहाँ से 90 पर है ऐसे. So can you explain? Yes, why not? Okay. So here you notice that the object distance, if this is 50 from here to here, this is 50 from here to here,
and object distance is always measured from the lens, and this is actually 26 from here to here. So what would be the distance from here to here? That will be 26. Object distance will be 26 now, and you knows very well that this will comes in the negative x-axis. Negative x-axis. So that's this decision. U is always negative. You can consider that when we're calculating the values, U हमेशा नेगेटिव में होता है क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में होता है. ये वाला डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में मेजर होगा और ये वाला डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में मेजर होगा. ओके, सो इफ आई एम राइटिंग हियर दैट इज माइनस ऑफ 26, so the distance is minus of 26. So minus of 26 is common in, means the option can be A or B. A या B हो सकता है क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो वही होगा. सॉरी माइनस 24, ये 26 दे रखा है ना. पोजीशन ऑफ कैंडल, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट. Here we have to, this one is not 24 actually, this one is 26. Position of candle is 26. So this one is 26, this one is 26, so this one is 24. So object distance is 24. So it can be either C or D. Now you know that the focal length. Now coming to the focal length of this lens is positive. Again the option is always correct. अभी भी हमारे पास जो है ये 15 दे रखा है तो ठीक है. फोकल लेंथ हम लोग 15 मान लेते हैं, पॉजिटिव में ही होगी, कोई नेगेटिव नहीं दे रखा. कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. ओके, सो इट कैन बी स्टिल बी और सी. अभी ये हमें बताएगा कि ये बी है कि सॉरी सी है कि डी है. अभी तो ये दोनों ऑप्शन ठीक है क्योंकि दोनों में सेम है. अभी हमको डिसाइड करना है. अब आपको पता है कि ये जो इमेज बनेगी वो इस तरफ बता रहा है 90 जो होगा वो 50 से आगे, तो यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि पूरा यहाँ तक 90 है और लेंस से आगे का कितना होगा, फिर अगर पूरा 90 है तो ये 40 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक. जहाँ भी स्क्रीन है, जीरो से लेकर स्क्रीन का डिस्टेंस 90 है, तो लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस कितना होगा, यानी वही इमेज डिस्टेंस होगा, दैट वुड बी 40. एंड ये वाला जो डिस्टेंस मेजर होता है ये पॉजिटिव उसमें मेजर होता है, यानी कि इस तरफ पॉजिटिव होता है. सो वी हैव टू राइट हियर +40. ठीक है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. गॉट इट? गॉट इट Yes, बेटा? sir. Yes, sir. Okay. Question number next. Tell me. Sir, is it B? It is B. Okay. Yes. False field develop in a small unicellular organisms. Oh, correct. Pseudopodia. Pseudo means होता है false. Podia means feet. तो false feet. तो सही है जवाब 6. Question number 6. Which one is correct? How will you measure the angle? So second and the fourth one. Second and the fourth one. No, beta. We always measure the angle because the protector. We are going to measure the angle from the. हम लोग को नॉर्मल से मेजर करना होता है. प्रोटेक्टर में इस तरफ 0 होता है और इस तरफ 0 होता है. सो इधर से भी 0 180 तक होगा और इस तरफ से भी 0 180 तक होता है. सो हम लोग को प्रोटेक्टर जब रखेंगे तो यहाँ से 0 से मेजर करेंगे तो ये वाला एंगल हम लोग को जितना आएगा वो मिल जाएगा. अगर हम लोग यहाँ से मेजर करते हैं तो 0 यहाँ पर है, तो फिर हम लोग ये वाला एंगल को मेजर करेंगे और फिर 90 में से माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के हम लोग को ये एंगल मिलेगा. सो कोई फायदा नहीं, डायरेक्टली आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन रखिए और यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन से रखिए और यहाँ से आप काउंट कर लीजिए. तो दिस वन एंड दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, गॉट इट? Yes. Yes, sir. Okay, moving to the next question. Okay, tell me which one is correct.
So option D. Option D. D. The correct sequence of Yeah. anaerobic respiration is Yeah, sir. Option D. D. Pyruvate, then ethanol and carbon dioxide. Correct. Next. So C. C. So C, sir. A convex lens of focal length 5. Yes, 5 centimeter. A convex lens of focal length 5 centimeter will be reach. क्योंकि इस केस में जो होगा कॉन्वेक्स लेंस तो हम लोग को यूज किया जाएगा, क्योंकि वर्चुअल एंड लार्ज इमेज, ये तो हमेशा कॉन्केव लेंस तो हमेशा डिमिनिश इमेज बनाता है। तो कॉन्केव लेंस तो हर हालत में खत्म है, मतलब डिमिनिश छोटा, हम लोग को और छोटी इमेज थोड़ी ना देखनी है भाई, हम लोग को एनलार्ज करके देखनी ना इमेज, छोटे लेटर्स को पढ़ने के लिए। तो कॉन्केव तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब हमारे पास बचता है कि कॉन्केव लेंस और दी कॉन्वेक्स लेंस। तो अगर हम लोग फोकल लेंथ 50 लेंगे तो 50 सेंटीमीटर तो बहुत दूर हो गया भाई, और आपको ऑब्जेक्ट को 50 और उसके बीच में रखना पड़ेगा। आप क्या करते हैं एग्जैक्टली जितना ज्यादा जितना कम, मतलब जितना जितना कम फोकल लेंथ होती है उतनी ही ज्यादा पावर होगी। मतलब हम बोलेंगे कि अगर फोकल लेंथ ज्यादा है तो उतना ही थिन थिन लेंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोल रहा हूँ कि इसकी और इसकी पावर निकालें हम लोग, तो P इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा कितना, दैट इज 100 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो 50 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना रहेगा, 2 डायोप्टर आ गई पावर इसकी। तो 2 डायोप्टर का तो नॉर्मल बच्चों के लेंस लग ही जाता है चश्मे में, तो चश्मे वाला लेंस तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। लेटर्स को पढ़ने के लिए हम लोग को मोटा वाला चाहिए होता है जिसमें अच्छे से दिखता है। सो 100 अपॉन अगर 5 वाले से करेंगे तो यू विल गेट अ पावर ऑफ कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 20 डायोप्टर की आपको पावर मिलेगी, और वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो जितनी छोटी फोकल लेंथ, मतलब कम फोकल लेंथ होती है, उतना ही पावरफुल लेंस होता है और उतना ही एनलार्ज इमेज आपको दिखेगी। फिर दूसरी बात ये भी है कि जब आप मिरर को, सॉरी लेंस को फोकस यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, और हम लोग जाहिर सी बात है बुक के पास ही रखेंगे लेंस को, ऐसे हाथ में तो लेके करेंगे नहीं, बुक के ऊपर ही रख के लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर मोर देन एनफ डिस्टेंस है, तो बुक के और लेंस के बीच में जो बुक होगी वो 5 सेंटीमीटर से पहले ही आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी एनलार्ज इमेज हम लोग को, सॉरी एनलार्ज इमेज हम लोग को इस तरफ दिखाई देगी, जिस तरफ हम लोग को ने लेंस को दिया है। सो उसी तरफ हम लोग को उसकी इमेज दिखाई देती है। सो हम लोग को एनलार्ज इमेज दिखाई देगी, तो जब पास में होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट सॉरी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट। वेट अ मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं अभी। Okay, solve this one. This question.
So C part. C. When the turnings of silver nitrate is added to blue color solution is formed after some time. ये रिएक्शन में क्या हो रहा है? जाहिर सी बात है, जब सिल्वर टर्निंग्स को आप डालोगे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, ब्लू कलर सॉल्यूशन आएगा, तो इट इज बिकॉज कॉपर AgNO3 की रिएक्शन अगर आप कराओगे कॉपर के साथ तो इट विल गिव्स यू कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। अब ये जो कॉपर में जो यहाँ पर कॉपर जो है वो 0 पर है और यहाँ पर कॉपर आ गया +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पर। सो दिस Cu2 पॉजिटिव आयन जो होता है ये ब्लू कलर का होता है। जब भी Cu2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में होता है तो वो ब्लू कलर हो जाता है सॉल्यूशन। सो डिस्प्लेसेस द सॉल्यूशन। कॉपर ने क्या किया है? इट इज बिकॉज कॉपर डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन। यस, सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फॉर्म ब्लू कंपाउंड कॉम्प्लेक्स विद AgNO3, ये तो नहीं है। तो दूसरा कह रहा है इज ऑक्सीडाइज टू, मतलब कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू Cu2 पॉजिटिव। नहीं, ये रिड्यूस हुआ है, क्योंकि सॉरी ऑक्सीडाइज ही हुआ है। 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे चला गया, मतलब इंक्रीज कर गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। यस, इट इज ऑक्सीडाइज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड मींस फर्स्ट एंड थर्ड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। डू क्वेश्चन नंबर 2। So B part. बी पार्ट, बी पार्ट, क्लोवेल। यस, क्लोवेल इज द करेक्ट ऑप्शन। Sir, can you repeat the other question again? विच वन? The other one? अदर कौन सा मतलब? When the turnings are added to silver nitrate फर्स्ट वन solution. वाला? Yes, first one. This one is simple, that copper when added to silver nitrate, it will becomes copper nitrate and silver will be formed. ये डिस्प्लेस करता है, इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉपर की जब रिएक्शन हम लोग कॉपर नाइट्रेट से कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव होता है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, फिर मर्क्यूरी है, फिर सिल्वर है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो ये डिस्प्लेस कर देगा किसको? किसको? कॉपर डिस्प्लेस कर Copper. देगा सिल्वर को और इट विल फॉर्म्स कॉपर नाइट्रेट एंड कॉपर नाइट्रेट बना लेगा। तो जब कॉपर सॉलिड है, कॉपर सॉलिड जब Cu2 पॉजिटिव में जाता है तो उसका हो जाता है ऑक्सीडेशन। कैसे हुआ ऑक्सीडेशन? 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि कॉपर नाइट्रेट में तो कॉपर कंपाउंड में है, तो वो अपने ऊपर जो चार्ज होगा वही चार्ज लेगा, Cu2 पॉजिटिव। तो इसका क्या हो गया? 0 से +2 मतलब इंक्रीज करिए ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या हुआ? ये डिस्प्लेस भी किया, कॉपर ने डिस्प्लेस किया है सिल्वर नाइट्रेट में को, मतलब सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से, तो डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम द सॉल्यूशन। So first and third is the correct option. Okay. Okay, sir. Next part में बताइएगा क्या जवाब होगा आपका? Tell me beta, which one is the correct?
So C part. C part. Which of the following statement is are incorrect about the aerobic respiration? Aerobic respiration जो होती है वो पूरी की पूरी पहला पार्ट को छोड़ करके दूसरे सारे पार्ट्स माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं और पहले स्टेप में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट में, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन. सो फर्स्ट स्टेप इज ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होता है, ग्लाइकोलाइसिस स्टेप होता है और साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, साइटोप्लाज्म में ये होती है और 2 मॉलिक्यूल कूल ऑफ पायरुवेट में टूट जाता है, पायरुवेट, पायरुवेट में टूट जाएगा. फिर ये फर्दर अगर ऑक्सीजन मिलती गई तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी आपको देखने को मिलती है. तो और इस ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू पायरुवेट, ये बिल्कुल सही है. ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल एंड पायरुवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. यस, पायरुवेट जो होता है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है और ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, ये भी सही जवाब है. उसके बाद है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया. माइट्रोकॉन्ड्रिया में शुरुआत में तो नहीं होता है लेकिन बाद में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो अभी हम लोग चेक कर लेंगे. उसके बाद इस ऑप्शन को भी रहने देते हैं. द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. अब पायरुवेट का ब्रेकडाउन यूजिंग ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में नहीं होता, पायरुवेट का ब्रेकडाउन यूजिंग ऑक्सीजन को यूज करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है. तो फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो इसके साथ हम लोग को थर्ड भी लेना पड़ेगा, यानी थर्ड भी ले लो. तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड ग्लूकोज 6 कार्बन में इधर 3 कार्बन मॉलिक्यूल सही है. सो फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या, कहाँ गया? अच्छा, इनकरेक्ट बताना, इनकरेक्ट, सॉरी, इनकरेक्ट बताना है हम लोग को, इनकरेक्ट बताना है. सो फर्स्ट और सेकंड तो बिल्कुल सही है, तो उसको तो लेना नहीं है इनकरेक्ट में. अब हम लोग रखते हैं ये वाला, फोर्थ 100% है, फोर्थ खाली अकेला नहीं है किसी के साथ, तो फोर्थ सभी में है इनकरेक्ट में, इसमें लेकिन जिसमें सेकंड और फर्स्ट हो उसको तो बिल्कुल रिजेक्ट कर दो, तो इसमें सेकंड है उसको खत्म कर दो. सो इसका सही ऑप्शन होगा सी. सी सही है, समझ में आया बेटा? Yes, sir. क्योंकि ब्रेक Yes, डाउन sir. ग्लूकोज जो होता है वो किस में होता है, साइटोप्लाज्म में, मगर ये पायरुवेट में की बात चल रही है कि ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुवेट इज इन साइटोप्लाज्म. यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना चाहिए था लेकिन कोई नहीं, हम लोग के ऑप्शन से हम लोग को अंदाजा हो गया, यही आपका इसी चीज का आपका टेस्ट है एक्चुअल में. ओके, सो लेट्स मूव फर्दर, मूविंग फर्दर, डू क्वेश्चन नंबर दिस नेक्स्ट.
डन बेटा. sir. ओके बताइए क्या जवाब होगा इसका. Select the correct statement from the given below and regarding the refractions of light when the light is incident from a medium having a refractive index of 1.85 on a glass slab. Refractive index of 1.5. Will it bend towards the normal? Emergent ray is parallel to the reflected ray. Speed of the light will be glass in more than medium. बताइए मुझे जवाब फटाफट से बताइए. Tanishka, what would be the answer of this question? I'm Sir, asking is it A? A, first and second. Yes. Okay, let me check. So first of all, select this statement in the given book. When the light is incident from a medium having a refractive index of 1.85. So the refractive index of a medium having means is having a refractive index of 1.85. So let that medium be this. That is going to have the refractive index of 1.85. And the light is entering to the glass slab with this is going to have the refractive index of 1.5. So more the refractive index, more will be the denser medium. So this is denser medium and this one is the rarer medium. Why? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका कम है, तो जो इसका ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वही डेंसर होगा. अब लाइट ट्रैवल कर रही है डेंसर से रेयरर मीडियम में, तो व्हेनेवर द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, it will bend away from the normal. So it will bend away from the normal. Okay, so light will bend towards the normal. This one is incorrect. The emergent ray is parallel to the refracted ray, to the refracted ray. No, emergent ray is always parallel to the incident ray. It is always parallel to the incident ray, not the refracted ray. This one is the refracted ray, this one is the refracted ray, and this one is the incident ray. So this option is also incorrect. Speed of light is more in glass slab than compared to a yes. जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उतना ही ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट होती है. तो हम बोलेंगे रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू डेंसर मीडियम. सो इन दोनों में अगर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो दिस वन इज गोइंग टू हैव द मोर लेस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो देयर विल बी मोर स्पीड ऑफ लाइट. सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट. द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज मोर देन द एंगल ऑफ यस. व्हेन द लाइट bends away from the normal, when the light is bending away from the normal, okay, then the angle of incidence is less than the angle of refraction. So the angle of refraction will be more, or we can say the angle of refraction will be more here as comparison to angle of incidence. So this one is also correct. So third and fourth is correct. So third and fourth means D option is correct. Got it? Yes, sir. Got it? Okay. So do question number this one. Sir, the assertion is true, but the reasoning is false. Assertion is true, but the reason is false. A Yeah. common salt is kept in open air. It absorbs moisture from the air. The reason is common salt contain magnesium chloride. Yes, the magnesium chloride, common salt contain NaCl, but 60 to 70% is NaCl. Sorry, 70 to 80% to 90, मतलब उसके अंदर 10% 10 से 20% इसमें magnesium chloride भी होता है. Okay, so it also contains this one, and magnesium chloride is a good absorbent of moisture.
So actually we can say that it absorb moisture. Yes, common salt contain moisture. It absorb moisture, and reason is this: okay, common salt contain magnesium chloride. Yes, this is also correct. So we can say both assertion and reasons are true, and extension is the correct explanation for A. Okay, sodium chloride also absorb the water, but magnesium chloride is a good absorbent of moisture. Okay, so because magnesium chloride means common salt also contain common salt is a mixtures of different types of salts. अगर हम प्योर कॉमन सॉल्ट की बात करें तो NaCl हो गया, लेकिन उसके अंदर दूसरे सॉल्ट भी मिक्स्ड अप रहते हैं. ओके, गॉट इट बेटा. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so do next question, this one. Here you have to tell me, इसमें आपको बताना होगा कि that is the system consist of the, आपको इस तरह it involve the broken of food into simpler component until to be absorbed the assimilate. मतलब आपको सिंपल बताना है इसमें कि P और P to T ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस तरह से फूड का डाइजेशन हो रहा है. ओके, आपको मुझे बताना है कि S, R एंड S कौन से ऑर्गन है, सॉरी S एंड T कौन से ऑर्गन है. Which organs is S and T? S and T कौन से ऑर्गन है. ओके, R S T बताइए. R कौन सा ऑर्गन है, S कौन सा है और T कौन सा है. ये एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट है. P, Q, R, S आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल लाइक buccal cavity, oesophagus, stomach, small intestine, large intestine. तो ऐसे आपको बताना है कि R, S and T कौन सा पार्ट है. Tell me fast, we don't have all day. सो बेटा इसको तो आप आसानी से कर सकते हो ना. आपको पता है मैक्सिमम यहां तक हो रहा है डाइजेशन का परसेंटेज आपको दे रखा है यहाँ से, और 100% आपको यहाँ दे रखा है. सो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हुआ, कुछ ब्यूकल कैविटी में होगा, कुछ ऐसे इसोफेगस में होगा, यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ से एकदम से बढ़ गया, यहाँ से एकदम से बढ़ गया. तो इस जगह पे यानी आर में आने के बाद डाइजेशन का लेवल बढ़ा है. सो आर मस्ट बी स्टमक, क्योंकि स्टमक में डाइजेशन ज्यादा होता है. सो आर मस्ट बी स्टमक. फिर एस के बाद, एस से जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में गया एस, तो यहां से जैसे गया है पूरा 100% यहां पर नहीं हुआ एस में जाने से पहले, लेकिन एस में जाने के बाद ये एकदम इंक्रीज कर गया, और टी से जाने से पहले ये मैक्सिमम परसेंटेज तक पहुंच गया. और आपको पता है कि 100% डाइजेशन कहां पर हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. तो दिस विल बी द स्मॉल इंटेस्टाइन. और टी से जाने से पहले मतलब कोई चीज टी में गई नहीं, उससे पहले 100% हो गया, तो जाहिर सी बात है कंफर्म हो गया कि एस वुड बी द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड टी वुड बी द लार्ज इंटेस्टाइन. समझ में आया? गॉट इट बेटा? Sir, can you explain again? या व्हाई नॉट, आई कैन नॉट. ओके, देखो अलग अलग जगह पर हमारे डाइजेशन होता है. सबसे ज्यादा मुंह के अंदर डाइजेशन, 30% डाइजेशन स्टार्ट इन द माउथ, ब्यूकल कैविटी में. फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी इसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता. फिर उसके बाद स्टमक में डाइजेशन होता है. ओके, स्टमक के बाद फूड जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. तो
यहां से यहां तक जो फूड आया है क्यू तक, क्यू में और आर में एंटर होने से पहले, यानी यहां तक समझ लीजिए कि ये ब्यूकल कैविटी हो गया आपका या माउथ से पहले, ठीक है, पी। उसके बाद तुम्हारा फेरिंग्स हो गया या जो भी समझ लीजिए, उसके बाद ईसोफेगस आ गया, ठीक है, या इसको आप ईसोफेगस समझ लीजिए कि ये ईसोफेगस है। दिस पी इज ब्यूकल कैविटी, ब्यूकल कैविटी। आर इज ब्यूकल कैविटी में जितना डाइजेशन हुआ है उतना का उतना ही है, इसमें कुछ नहीं बढ़ा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं दिखा रहा कि यहाँ पे कोई डाइजेशन हुआ है, उतना का उतना ही है जितना है। तो आर क्यू में, क्यू क्या हो सकता है, क्यू कैन बी द ईसोफेगस, ईसोफेगस, क्योंकि ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, नो डाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द ईसोफेगस। ओके, सो उसके बाद यहां से Q, sir, Q is esophagus, right? yes, Q is esophagus because no digestion take place. So P में, P is buccal cavity जिसमें थोड़ा सा डाइजेशन हुआ, बड़ा। उसके बाद ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं हुआ, ईसोफेगस से आर तक यानी स्टमक तक पहुंच गया, कोई डाइजेशन नहीं हुआ। ये लाइन कांस्टेंट है, कोई भी चेंज नहीं दिखाई दे रही इस लाइन में, तो इसका मतलब इसमें कोई डाइजेशन नहीं हुआ। फिर आर में जैसे ही फूड गया, उसके बाद थोड़ी देर रहने के बाद वो एकदम से उसका डाइजेशन बढ़ गया, यहाँ पे एकदम देखोगे लेवल बढ़ गया। सो इट मींस आर इज स्टमक, आर इज स्टमक। फिर आर में भी पूरा 100% नहीं हुआ है, इसका मतलब है कंफर्म आर इज स्टमक, क्योंकि 100% हो जाता तो फिर उसके बाद एस में जाने के बाद जो खाना गया है यहाँ से इसमें एस, वो उसमें जाने के बाद उसमें गया तो 100% नहीं था, लेकिन उसमें जाने के बाद 100% तक पहुंच गया। इसका मतलब ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में 100% डाइजेशन होता है फूड का, इंटेस्टाइन, देयर इज अ 100% डाइजेशन टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन आफ्टर लार्ज इंटेस्टाइन, टी वुड बी द लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि उसमें तो 100% हो ही गया है। गॉट इट? अब तो समझ में आया? Yes, sir. So P is buccal cavity, Q is esophagus, R is stomach, and S is small intestine, T is large intestine. Yes, yes, yes. Okay, Okay, do sir. question number next. You do this one. Do this one.
बताइए बेटा कैसे होगा ये, सिंपल क्वेश्चन है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज दिस वन, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मींस एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, जब जब लाइट एयर से ग्लास में जा रही होगी तब 4/3 आपको गिवन है। एंड दैट ऑफ, सॉरी दिस इज वाटर, पहले वाटर का दे रखा है ना, दिस इज वाटर, दिस इज वाटर, and then refractive index air to glass is how much, that is 3/2. Okay, now a ray of light is traveling in water is incident on a glass at an angle of 45 degree. जब एक ray of light किस में ट्रैवल कर रही है, is traveling in water and incident on a glass, यानी पानी में ट्रैवल कर रही है और इंसिडेंट हो रही है किसमें, ग्लास में। इट इज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल कर रही है वाटर से ग्लास में। सो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, दैट इज 4/3 की वैल्यू होती है 1.33 और इसकी होती है 1.5। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है एक्चुअली में, सो इट विल बेंड स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो अभी पूछ रहा है कि एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 45 डिग्री है। सो उसने पूछा है कि फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताइए कितना होगा ये। सो आपको लिखना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू, जब लाइट जो है वो ट्रेवल करेगी किसमें, वाटर से ग्लास में। तो यू हैव टू राइट हियर वाटर टू ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर टू ग्लास। लेकिन आपको तो गिवन ही नहीं है वाटर टू ग्लास, आपको तो एयर टू वाटर गिवन है एंड एयर टू ग्लास गिवन है। तो पहले आपको निकालना होगा कि इसकी वैल्यू क्या होगी। सो वाटर टू ग्लास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 2 बार इसको लिखेंगे ऐसे, फिर यहाँ वाटर है इसको वाटर लिखिए, यहाँ ग्लास है इसको ग्लास लिख लीजिए, जो उनका कॉमन मीडियम है एयर, एयर लिख दीजिए, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। उसके बाद अब आपको एयर टू वाटर गिवन है ना, और आपको लिखना यहाँ पर वाटर टू एयर है। सो आपको पता है कि अगर आपको वाटर टू एयर चाहिए, मीन्स ये चीज इस तरफ चाहिए, ये चीज इस तरफ चाहिए, तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको नीचे और इसको इधर ले आइए। सो इट विल गिव्स यू 3/4, means if air to water is 4/3, then water to air would be 3/4 into air to glass is being given to you, same it is, ऐसे लिख दीजिए 3/2, that would be 9/8। so 9/8 किसकी वैल्यू आ गई बेटा, इसकी, यहाँ इसकी यहाँ पर इस जगह वैल्यू रखनी है आपको। सो आपको पता है कि साइन आई कितना दे रखा है आपको 45, so write it 45 अपॉन साइन आर आपको निकालना है, that is 9/8। okay, now take this value to this side and sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। so you can write it 1/√2 is equals to 9, this 8 will comes to this side for multiplication, or you can write it like this way। अभी मैं इसे लिख देता हूं कि sin 45 into 8/9, 8/9 मीन्स ये इस तरफ आ गया और ये 9 नीचे आ गया और ये sin r ऊपर आ गया। So this sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो you can write it 1/√2 into 8/9 is equals to sin r। ठीक है, 1/√2 की वैल्यू होती है 1.414, 1.414। ठीक है, so you can write it sin आपको मिलेगा 1.414, √2 की वैल्यू 1.414। ओके, और या फिर आप इसको यहीं पर इसको कट कर दीजिए, यू कैन राइट इट 2√2 नहीं 4, हाँ कितना बचेगा 4√2 बचेगा आपका यहाँ पर। ओके, और आप यहीं पर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट हियर, यहाँ से मैं इसको 1.414 लिखता हूँ इंटू 9/8 इज इक्वल्स टू साइन आर। सो 9 से आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको आप 8 से डिवाइड करेंगे, तो यू विल गेट द वैल्यू दिस, आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, मतलब आप यू विल गेट 1.6 to 0.6284, ये आपके पास वैल्यू आएगी इक्वल टू साइन आर। और ये जो वैल्यू होती है वो साइन 38 की होती है, तो यू कैन राइट इट साइन 38.9 इज इक्वल टू साइन आर, आर से साइन कैंसिल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 38.9। गॉट इट बेटा? Yes, sir. कॉपी करो ये Yes, क्वेश्चन, sir. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी करो। Yes, sir.
So done. Done. Okay. Do the next question. Kevin, you also done? Yes, sir. So this is the last question. Do this one also. Tell me. The diagram shows you which one is the correct one. डन. अरे ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार. ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला रीजन क्लोरोप्लास्ट का, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा, एंड इन दिस द डार्क रिएक्शन टेक प्लेस, डार्क रिएक्शन, and this part is the thylakoids or granum. Thylakoids, the single part is called thylakoid and the group, ये कुछ इस तरह से होता है. इसमें जो सिंगल पार्ट होता है उसको थाइलाकॉइड बोलते हैं, और जब ये ग्रुप में हो जाता है तो वी टुगेदरली कॉल्ड इट ग्रैनम, और प्लूरल इज grana. So in this the light reaction take place, absorption of light takes place, and this is actually what, this is the q is actually the storage organ, the carbohydrate storage, you can simply say. So p is actually the light absorption take place here, and q is actually the carbohydrate storage, and r is the carbohydrate synthesis, means यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का प्रोडक्शन होता है. ये लाइट रिएक्शन है बेटा. मैं आपको एक सिंपल सी वो बताता हूँ आज आपको, ठीक है, कि अगर आपको वाकई में आप सीरियस हैं और आप चाहते हैं कि आपका सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हो जाए और साइंस में फुल मार्क्स भी आपके पास आ जाए, ओके, सो मैं आपको अभी सारी वीडियोस बता देता हूँ साइंस में जो आपको देखनी होंगी, मेरे ही चैनल की हैं, और
हम लोग मैं आपको बता देता हूँ कि आप उसको उतना धीरे धीरे कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपके पास टाइम है, 1 वीक में आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे साइंस। 1 वीक तो मैंने बहुत ज्यादा बता दिया, ठीक है, बहुत कम टाइम में आप कंप्लीट कर लेंगे, यानी अगर आप ध्यान से पढ़ें तो। मैं आपको दिखाता हूँ, ओके, क्योंकि हमारे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है और अभी तुम सिर्फ डाउट क्लियर कर सकते हो, हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट सिलेबस को कंप्लीट करें। क्योंकि आप लोगों का मैं केविन के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ और असीला के लिए, क्योंकि तुम लोग ने नहीं पढ़ा, यू हैव ज्वाइन लेट, सो इसलिए मैं तुम लोग के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ कि तुम लोग को थोड़ा सा हार्डवर्क करना ही होगा। एंड तनिष्का, यू कैन ऑल्सो अचीव वेरी गुड मार्क्स फ्रॉम दीज वीडियोज, ओके। सो मैं यहाँ पे, ओके, सो actually, so this is, you have to write this name on the Google, Awais Parvez. This is my name, okay. And when you go to this YouTube channel, okay, so there you will find some videos, okay. Go to the video section and video section में आप जाकर के देखेंगे कि आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के भी नोट्स पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशंस इन ह्यूमन बीइंग, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, हाउ टू राइट द फॉर्मूला, कास्टिक सोडा, ये सारी वीडियोस, ये कुछ ही वीडियोस हैं। अगर आपने ये देख ली ना, मतलब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी वीडियोस देखनी है आपको जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये वाली वीडियो देखिए, ये देखिए, ये देखिए, हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला। अगर केमिस्ट्री बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल समझ नहीं आता, तो ये वाली वीडियो देखिए, आपको आ जाएगा। कास्टिक सोडा यानी सारे सॉल्ट्स इसके अंदर है, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, हाउ डू एसिड बेस इंडिकेटर वर्क्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर मिनरल, डिफ्यूजन, इलेक्ट्रिसिटी, ये देखने की जरूरत नहीं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा है, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट पार्ट 1 ये देख लीजिए आप। उसके बाद नीचे उसके बाद है नीचे आपको जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आपको एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स भी इसमें पूरा पड़ा हुआ है। देखो, अगर आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को पढ़ोगे तो पूरा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरा चैप्टर पड़ा हुआ है। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट वाई डाइल्यूशंस, ये पूरा इसमें वैसे भी पड़ा हुआ है। सो आप ये वीडियोस को देख लीजिए, इतना सिलेबस आपको करा दिया गया है, उतनी वीडियोस इसके अंदर पड़ी हुई हैं चैनल पर। आप इसको देखिएगा और आपको सारे डाउट्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। मतलब न्यूट्रिशन अगर नहीं पता कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, तो आप यहाँ पर ये वाली वीडियो देख लीजिए। एरोबिक और रेस्पिरेशन नहीं पता है ना एरोबिक, ये वाली वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सॉल्ट, एसिड बेसिस सॉल्ट्स के पूरे पार्ट पड़े हुए हैं, सॉल्ट पार्ट 1, इस तरह से पूरे पार्ट्स पड़े हुए हैं, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्लेट सो जैसे, तो ये आप देखिएगा तभी तो आपको समझ में आएगा। तो आप एक बार देखिए, ट्राई कीजिए, तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। लाइफ प्रोसेस पूरा पढ़ा हुआ है इसमें, यानी बायो पूरा आप 100% स्कोर कर सकते हैं बायो में, इतना डिटेल में पढ़ा हुआ है हर एक चीज, ठीक है। वैसे भी पढ़ा हुआ है, नोट्स भी हैं उसके साथ साथ, यहाँ पर ये पूरा लाइफ प्रोसेस पूरा लगभग पढ़ा हुआ है पूरा। सो इसको आप कर लीजिए, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अदरवाइज इसमें अगर आप 2 या 3 या 4 वीडियो, 3 वीडियोस भी अगर आप देखेंगे ना, तो मुश्किल से 3-4 दिन में आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। आपके पास टाइम है अभी, आप कर सकते हैं, विद इन अ वीक आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छा आ जाएगा आपसे। लाइट नहीं है इसके अंदर, लाइट चैप्टर को मैं आपको पढ़ाता हूँ, प्रैक्टिस कराता हूँ, जो नहीं आएगा मैं फिर से प्रैक्टिस करा देता हूँ। लाइट चैप्टर की मेरी जिम्मेदारी है, बाकी आप ये केमिस्ट्री में जो चैप्टर्स है उसको आप करिए अच्छे से। मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आता तो आप वापस से इसमें देखिए और कोशिश कीजिए कि वो आपको समझ में आ जाए। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे पूछिए कि सर ये टॉपिक आपने